Hello everyone, welcome to my channel CS Ab Initio. I have prepared this video for all the CSET aspirants who are preparing for CSET examination. So I have received queries from number of students as how many days they need to dedicate to prepare for CSET, what subject they need to focus on, what amount of time they should spend on each topic. So this video provides for clear-cut study plan for preparing CSET, cracking it in very first attempt in just 60 days. You need to dedicate only 60 days of your life to crack in first attempt. Let's see how. So now we are going on a 60-day ride to crack CSET in first attempt. So this video will provide a clear understanding of how you need to spend your 60 days, what amount of time you need to spend on your studies, what amount of time you need to study each subject, what amount of time you need to spend on each topic, and how to get ready for a CSET examination in just 60 days. If you follow this calendar which I am providing in this video religiously, it is sure that you will clear your CSET examination in very first attempt. So first important rule is that you need to study at least 5 hours a day, 6 days a week. So one day of the week is completely yours. You can take a complete break and not study at all. So it's a 60 days plan, 6 days each week and 5 hours per day. Now let's see how to plan your studies for completing entire curriculum in 60 days. So these are your subjects: economic and business environment, legal aptitude and logical reasoning, business communication, current affairs, presentation and communication skills. So in this video we'll move subject wise. We'll see what are the topics which are covered in each subject, how much time you need to dedicate for preparation of each topic and entire paper. First we'll see economic and business environment. So economic and business environment has two parts: economics, which is of 25 marks, and business environment, which is again of 25 marks. So this paper is divided into two equal parts. You need to concentrate on economics and business environment both, but the difference is economics contains more topics, it has more wider curriculum, and business environment contains lesser number of topics, lesser number of chapters and quite a less syllabus. So part A, economics, which is of 25 marks, has a 5 main chapters or 5 main topics. First is basics of demand and supply and forms of market competition. Second is national income accounting and related concepts. Third is Indian Union budget. Fourth is Indian financial market. And fifth is Indian economy. So basics of demand and supply and forms of market competition, I hope all the commerce students have clearly understood and studied in 11th and 12th standard. And national income accounting and related concepts are also studied by most of the commerce students in 11th and 12th. So you need to dedicate 5 hours each day for at least 4 days for basics of demand and supply and forms of market competition, and 4 days for national income accounting and related concepts. For rest of the 3 topics, which is quite wide, and it also include quite journal awareness things. So the module is entirely enough. Most of the students thinks that since Indian Union budget है, फाइनेंशियल मार्केट्स है, इंडियन इकोनॉमी है, इसके बारे में हमें न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ना चाहिए, मैगजीन्स भी पढ़नी चाहिए, वीडियोस देखने चाहिए, बहुत सारी जर्नल अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी. बट इट इज़ नॉट ट्रू. इफ यू आर डूइंग दोज थिंग्स इट इज़ वेल एंड गुड, बट इफ यू कैन entirely go through your module, you can understand the syllabus entirely. बट अगर इन तीनों टॉपिक्स के लिए आप सिर्फ अपना मॉड्यूल रेफर करते हैं वो भी सफिशिएंट है. आपको इंडियन यूनियन बजट, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स और इंडियन इकोनॉमी पे प्रॉपर टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा. सो आई हैव डेडिकेटेड मिनिमम 5 डेज और हर दिन आपको 5 घंटे इन टॉपिक्स पे डेडिकेट करने हैं. सो ये आपका डे वाइज ब्रेकअप है पार्ट ए इकोनॉमिक्स प्रिपेयर करने का.
अब हम पार्ट बी में आते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। सो बिजनेस एनवायरनमेंट में 3 बेसिक टॉपिक है आपके पास। एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो, सेकेंड है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड थर्ड इज की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। सो ये टॉपिक अपने आप में बहुत वाइड स्केल पे नहीं है एंड मोस्टली मैनेजरियल टॉपिक्स हैं। आपने 10th-12th में इनको पढ़ा होगा, राइट? तो इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसे कोई टॉपिक्स नहीं है जो आप पहले से अवेयर ना हो इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट। सो you need to dedicate 3 days on entrepreneurship scenario, 3 days in business environment and only 1 day in key government institutions. अब हम आते हैं हमारे सेकंड पेपर पे, जो है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है हमको, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है एंड थोड़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। बिकॉज सीसेट में जो इसके क्वेश्चंस आते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आते हैं, ना कि आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी बेस्ड। So let's see how much time you need to dedicate to legal aptitude and logical reasoning preparation. So for legal aptitude, you have 4 main topics: Indian Constitution, elements of general laws and Indian contracts, law of torts, elements of company secretaries legislation and element of company law. So इसमें जो पहले 2 टॉपिक्स है वो आपके बहुत वाइड हैं, वो बहुत कुछ कवर कर रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर है। सो आई हैव डेडिकेटेड एटलीस्ट 9 days फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। जो जनरल लॉज है उसमें आपको 2 मेन टॉपिक स्टडी करने हैं, एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और एक लॉ ऑफ टॉर्ट्स। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इज अ वेरी वाइड टॉपिक, लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज नॉट दैट वाइड, बट ये सेकेंड टॉपिक अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है एंड देयरफॉर यू नीड टू डेडिकेट एटलीस्ट 9 days फॉर दिस। एलिमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, सो 3 days इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस। एंड एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट फॉर दिस प्रिपरेशन, फॉर सीसेट प्रिपरेशन एट फर्स्ट स्टेज इट इज नॉट वेरी डिटेल्ड। कंपनी लॉ आपको आपके एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में डिटेल में पढ़ना होगा, तो इसमें इतना डिटेल में नहीं दिया गया है एंड दैट्स व्हाई आपको एटलीस्ट 5 days लगाने हैं कंपनी लॉ प्रिपेयर करने में। अब हम आते हैं लीगल रीजनिंग पे। सो लीगल रीजनिंग में क्या क्या है हमारे करिकुलम में? एक है केस स्टडीज, लीगल टर्मिनोलॉजी एंड मैक्सिम्स, लीगल रीजनिंग बाय एनालॉजी, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट एंड लॉ on judgment of Supreme Court and High Court, right? So case studies and legal terminology and maxims is just to develop a legal aptitude in you. Legal reasoning में जो main topic है हमारा वो है 3rd वाला, legal reasoning by analogy and inductive and deductive reasoning. So इस topic में हमें ज़्यादा concentrate करना है, हमको reasoning practice करनी है। जितने भी questions module में दिए हैं, हमारे पास कोई रेफरेंसेस हैं अगर, तो हमारी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में भी दे ऑल्सो पब्लिश रेफरेंसेस एंड क्वेश्चंस, तो हम वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर हम आते हैं क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट एंड लॉ में, जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में। इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, हमें ये इंटायर टॉपिक लीगल रीजनिंग का 5 days में ही प्रिपेयर करना है। फिर हम आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। अब लॉजिकल रीजनिंग में हमने दिया है टाइम 8 days का, बट ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा अगर आप पहले से ही कोई बैंकिंग एग्जाम या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इसमें कम टाइम देना है और लीगल रीजनिंग में ज़्यादा टाइम देना है। If you are doing logical reasoning for the very first time, you need to dedicate at least 8 days for practicing these questions. This is not a complete reasoning paper as in the case of other competitive examination. यहाँ पर आपको बहुत ही स्पेसिफिक रीजनिंग स्किल्स डेवलप करनी है। कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग, कैलेंडर्स, क्लॉक्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ड्राइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेजेस एंड ड्राइंग इन्फरेंसेस, नंबर टेस्ट, सीक्वेंस टेस्ट, सीरीज टेस्ट एंड स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। ये ही आपके टॉपिक्स हैं जो लॉजिकल रीजनिंग में कवर किए गए हैं। हमें कोई भी रीजनिंग बुक उठा के उसके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने बैठ जाना है, हमें सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे रिस्ट्रिक्टेड रहना है और हमें ये एंटायर लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 8 दिन देने हैं। अब इसका जो 3rd पार्ट है वो है वर्बल रीजनिंग। सो वर्बल रीजनिंग में आई हैव पुट अ 10 days मिनिमम, बिकॉज ये थोड़ा सा बड़ा पेपर है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू, आपको अपने मॉड्यूल से भी पढ़ना पड़ेगा, आपको रेफरेंसेस भी करने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस बुक्स भी यूज करनी पड़ेगी।
So that's why you need to spend at least 10 days in verbal reasoning. अब ये आपको एग्जाम प्रिपेयर कैसे करना है, ये टॉपिक आपको प्रिपेयर कैसे करना है, उस पे आई विल प्रिपेयर इन अनदर वीडियो वर्बल रीजनिंग पे, सो यू कैन रिफर टू दैट. देन नॉन वर्बल रीजनिंग में हमने 5 days यूज किए हैं. दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, अ कंप्लीट लॉजिक बेस्ड रीजनिंग है ये, एंड दैट्स वाई इसमें हमने 5 days. अब हम आते हैं अपने थर्ड टॉपिक में, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन. लेट्स सी बिजनेस कम्युनिकेशन में हमें कितना टाइम लगाना है. सो बिजनेस कम्युनिकेशन इज ऑफ 20 marks. इसमें 4 बेसिक टॉपिक्स हैं. एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश, कम्युनिकेशन, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस और कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज. सो अगर हमारी इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स पहले से स्ट्रॉन्ग है, you need to spend a quite less time on these 2 topics, but please spend at least 5 days for business correspondence and at least 5 days for common business terminologies. वो इसलिए क्योंकि जब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस और कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज पे हम जाते हैं तो ये जेनरिक टॉपिक्स नहीं है. इसमें कोई स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी, इसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस आपको सिखाए जाएंगे. सो इसमें आपको 5 days डेडिकेट करना ही है. अगर आपके इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे नहीं हैं, रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे नहीं हैं, देन यू नीड टू स्पेंड एटलीस्ट 5 days ऑन दीज टॉपिक्स टू. अब हम आ गए हमारे लास्ट पेपर में, जो है करंट अफेयर्स, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. तो हम देखते हैं इसकी हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले तो हम करंट अफेयर्स में आते हैं. करंट अफेयर्स इज नॉट अ वेरी लिमिटेड सब्जेक्ट. ये आपकी पूरी जनरल अवेयरनेस चेक करता है. यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है न्यूज़पेपर्स पढ़ने की, बिजनेस मैगजीन्स पढ़ने की, बिजनेस ब्लॉग्स पढ़ने के, राइट. तो यहाँ पर आप रेफर कर सकते हैं. यू कैन यूज ईदर इंटरनेट और यू कैन इंटायरली डिपेंड ऑन न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ चैनल्स, बिजनेस न्यूज़ चैनल्स ओनली, राइट. सो इसमें आपके जो टॉपिक्स होंगे वो आपको करंट अफेयर्स हर तरह के, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, बिजनेस पर्सनालिटीज एंड लीडर्स, कमिटीज एंड अपॉइंटमेंट्स, आर्ट, कल्चर, बुक, ऑथर्स, स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल सिनेरियो, गवर्नमेंट की जो नई स्कीम्स आ रही हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के जो मैटर्स हैं. सो आपको इन सारे मैटर्स पे जनरल अवेयरनेस क्रिएट करनी है. बट ये सारे टॉपिक्स में स्पेशलाइज करना पॉसिबल नहीं है किसी भी स्टूडेंट के लिए. सो इसमें आप अपना टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट ढूंढिए. जैसे कुछ स्टूडेंट है जिनको बुक्स एंड उनके ऑथर्स के नेम नहीं याद रह सकते, अवार्ड्स एंड ऑनर्स पता नहीं बहुत पुराने हैं, वो नहीं रिमेम्बर कर सकते हैं. तो वो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इशूज़ पे. कोई गवर्नमेंट की नई इनिशिएटिव से स्कीम्स आई हैं, कोई पॉलिटिकल सिनेरियो जो लेटेस्ट चल रहा है न्यूज़ में, सो दे कैन प्रिपेयर एज पर देयर इंटरेस्ट एंड चॉइसेस. तो इस पेपर पे हम कुछ भी शो शॉर्ट नहीं कह सकते कि आप ये पर्टिकुलर करिकुलम फॉलो करेंगे तो आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर लेंगे. ये जस्ट आपकी अवेयरनेस चेक करता है. इसमें आप अपना टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट ढूंढिए, स्पेशली द लेटेस्ट हैपनिंग्स हुई हैं उसको पढ़िए. सो इस पेपर में आपको इन टॉपिक्स में से अपना टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट चुनना है. नॉट 1 बट एटलीस्ट 4 और 5 टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, और उससे रिलेटेड एटलीस्ट जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हुई हैं उसको जरूर रेफर करिए. सो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स एटलीस्ट फॉर 10 days. अब हम आते हैं प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में, जिसमें हमने 5 days डेडिकेट किया है. इसमें आपको 3 तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी है: लिसनिंग स्किल्स, रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स. सो इसके लिए आपके मॉड्यूल्स में स्पेसिफिक करिकुलम दिया हुआ है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है. तो ये हो गया आपकी टॉपिक वाइज प्रिपरेशन, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन. नाउ जब आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी उसके बाद क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट करने हैं. मॉक टेस्ट करने के लिए आपको एटलीस्ट 10 कंप्लीट टेस्ट करना है. जो आपके सीसेट एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे जो टेस्ट बना हुआ है वो अटेम्प्ट करना है आपको एटलीस्ट 10. फिर आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी करने हैं. अगर आपके एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन पूरी हो गई है तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं. और आप अगर टॉपिक वाइज आपके पास कोई सोर्सेज हैं जिससे आपके पास टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट या क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है तो आप पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट होने पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सो मॉक टेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन फॉर सीसेट.
वो आप साथ साथ भी करते चल सकते हैं, और आफ्टर प्रिपरेशन जब आप रिविजन करेंगे तो रिविजन के साथ साथ भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो दीज आर द बेसिक लिंक्स जो आपको आईसीएसआई की वेबसाइट में मिल जाएगा, जहां आपका स्टडी मटेरियल अपलोडेड है. सो दिस इज द स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज, पेपर वाइज, इसमें जाके जब आप मोर इन्फो पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा स्टडी मटेरियल ओपन हो जाएगा. दिस इज योर ऑनलाइन स्टडी मटेरियल. दिस इज लीगल एप्टीट्यूड. एंड इसी तरह से आप अपने चारों स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऑनलाइन ही रेफर कर सकते हैं. और इस तरह से आपके आईसीएसआई वाले कुछ मॉक टेस्ट, कुछ सैम्पल क्वेश्चंस अपलोड करते हैं. सो आप इन क्वेश्चंस को भी रेफर कर सकते हैं व्हाइल प्रिपरेशन. So thank you students. Hope this study plan which I have prepared for you in a very short will help you in preparation for CSET. Thank you so much.